Hello and welcome guys, and welcome to this vlog in which going to discuss with you about an important topic, an important subject of your syllabus, especially the CMA inter students, audit. Yes guys, audit is for 50 marks in your group 2 clubbed with accounts, and auditing is one of the most important subjects which you need to clear and get through if you want to get through group 2 and come to finals. So regarding this paper audit, I had faced a lot of queries from all of you asking me that, sir, what is the difference between audit which is being taught in CMA versus audit which is being taught in other professional courses? And my response to all of you have always been, guys, there's a vast difference. Maybe the content is similar, but the depth of content is absolutely different. To give you an example, standards of auditing are not discussed in depth in CMA course as it is discussed in depth in other courses. So it's really important for you to focus on the right things which are prescribed by Institute of Cost Accountants of India and study especially from the study material. Study material is definitely the Bible for you as far as auditing is concerned. In my efforts to help you, I had launched a book in which I had converted the study material into a notebook sort of a thing, and I had highlighted the study material, the relevant part of study material, and I had highlighted the part which was relevant for you, which you had to learn for your examination standpoint, and I had launched that book. Now guys, the new proposition is I have developed a book specially for CMA inter students audit. Yes, this book is out. This book is available to all of you. So what is so special about this book? The first thing which is so special about this book is that it is purely based on the curriculum prescribed by the Institute of Cost Accountants of India. Number 2, it contains over 250 MCQs which are beneficial for you for attempting the objective type questions. Number 3, it contains questions from past 10 years examination papers and the suggested solutions which you should write in those questions. Number 4, this book contains over 5 to 6 examples or some real life examples of each subject which will be able to showcase the practical applicability of each section of this book to you. So for example, if I am discussing audit report in this book, I have actually printed the audit report inside the notes and have incorporated a real life audit report inside these notes so that you can actually see how does an audit report look like. How does a voucher or a engagement letter look like? So I have incorporated my practical experience in this book. That will be definitely beneficial for all of you for not only gaining the theoretical aspect of this book, but also the practical bit of it. And yes, video lectures are also available for this book for studying auditing. So those of you who are interested to study from video lectures, they can have video lectures. If you think that no sir, we'll be able to manage with only the book, then notes will be really beneficial to all of you because they are primarily focusing on the examination questions which have come in the past examination, the study module of the Institute of Cost Accountants of India, and it is actually a culmination of relevant study material. Plus, there is a combo for the students who are willing to take video lectures, combo of accounts and audit. As you are aware that Santosh Kumar sir and me have prepared a combo for accounts and audit for your benefit and are providing the combo to all of you. So you can make use of that combo if you are willing to buy the video lectures, and if not, then book is definitely going to really be beneficial for you. And one important point which I missed out in the book is that, guys, I have given a trend analysis of how have questions been coming in the past examination relevant to each chapter. So how much percentage of each chapter has been appearing in the examination in past? Out of 50 marks paper, how much marks has been allocated to a particular chapter? I made that analysis in easy diagrammatic form so that you can easily
come to a conclusion that which chapter is category A chapter, which chapter is category B chapter, and which chapter is category C chapter, so that you can actually revise your subject easily before the examination. Plus, there are certain key points to remember after every chapter. There are bulleted points which will aid you to revise before the examination. So this is what I've done. I have compiled this book exclusively for my CMA Inter students. Please make use of it, and the demo video is attached for your reference. All the very best and happy studying. हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चों? सब कुछ बढ़िया? देखो, आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है, बैंकिंग कंपनी। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, बैंकिंग कंपनी बहुत प्यारा चैप्टर है। जितनी बातें हम लोग इसके अंदर में क्लास में डिस्कशन करेंगे, उसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। एग्जाम में जो भी आएगा सब इससे ही कवर होगा, इतना मुझे विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कोर्स के एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है ना? आज ना पहले लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, बैंकिंग कंपनी में टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें पढ़ना क्या क्या है लिखेंगे यहाँ पे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो पहला टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टॉपिक, रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। सेकेंड लिखेंगे आप यहाँ पे, सेकेंड टॉपिक, concept of rebate on bill discounted। ये सेकेंड हमारा टॉपिक है। थर्ड लिखे आप यहाँ पे, थर्ड टॉपिक लिखेंगे यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। सर ये तो हम बचपन से सीखे हैं। हाँ बच्चे, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे आरबीआई नॉर्म्स थोड़े फॉलो कर जाते हैं। बैंक है ना, बैंक पे आरबीआई काम करता है, गवर्न करता है, तो उसके रूल थोड़े फॉलो किए जाएंगे। फोर्थ लिखेंगे आप यहाँ पे, इसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, हम इसके बारे में समझेंगे। पांचवा लिखे आप यहाँ पे, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड गारंटी। ये हमारा पांचवा टॉपिक है, गारंटी। सिक्स लिखेंगे आप यहाँ पे, CRR एंड SLR। CRR पता ना, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। सर ये क्या है, मैं आगे बताऊंगा। आगे लिखे आप यहाँ पे, 7 पॉइंट में आपका 7 टॉपिक है, कार। सर कार मतलब लिखिए ब्रैकेट में, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और फिर आपका 8 टॉपिक में आएंगे हम लास्ट में यहाँ पे, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी जो होते हैं उनका फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा वो देखेंगे हम एज पर सेक्शन 29 के मुताबिक। मेरे बच्चे, ये टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देना, जिन बच्चों के पास भी जो क्लास डिलीवर्ड की जाएंगी इस बैंकिंग कंपनी का, वो आपके सिलेबस के मुताबिक, मतलब हो सकता है कि आप में से किसी के एग्जाम में ये आपका कार ना हो, तो कार की क्लास आपको डिलीवर्ड नहीं की जाएगी। आप चिंता नहीं करना, मतलब क्लासेज जो आपके पास आएंगी बिल्कुल वही आपका जो सिलेबस है, आपको उतना ही पढ़ना जो क्लासेज आपको मिलेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये टॉपिक्स हमारे पास है जिनके अंदर में हमें स्टडी करना है। मैं एक एक करके आऊँगा। एक बात ध्यान रखना, ये जितने ऊपर वाले टॉपिक हैं, ये ऊपर के जितने सारे टॉपिक्स हैं, इन सबको हम यहाँ पे लाके क्लब कर देंगे सेक्शन 29 के अंदर में, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, तभी हम फाइनल अकाउंट बना पाएंगे। बच्चे बताओ, तो इसको मिटा दूं मैं? सर हाँ जी। तो लीजिए, मैं पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ, इंटरेस्ट इनकम के बारे में। ये टॉपिक क्या बोलता है, आप मेरे साथ शुरू करेंगे। देखो, मैं ना बिल्कुल फ्रेश पेज लूंगा। आप भी चाहो तो इस पेज को छोड़ दो, इस पेज को छोड़ दो, थोड़ा सा जगह बच गया होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, और बिल्कुल नया पेज लीजिए
और लिखे ऊपर में आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे इस टॉपिक का, लिखेंगे आप रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। बैंक जो है, बैंक, मेरे बच्चे जितनी स्टडी हम एक बैंक के लिए पढ़ रहे हैं, कल को आप बड़े बच्चे बन गए, एक बैंक में गए काम करने के लिए, तो बैंक में जो अकाउंटिंग होता है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो बैंक जो है वो इंटरेस्ट इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करता है। इंटरेस्ट इनकम, पहले मुझे ये बताओ कि बैंक इंटरेस्ट कमाता किसके ऊपर है, बोलो ना किसके ऊपर कमाता है। सर जो लोन्स एडवांसेज उसने मार्केट में दिए, कर्ज, है ना बच्चे। अच्छा एक बात बता दूं मैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा कुछ नए वर्ड्स आपके लिए आएंगे, तो आप परेशान नहीं होना, उनको मैं समझाऊंगा वहीं पे आपको। जब एंड में आएंगे तो सारी बातें समझ में आपको आ जाएंगी, विश्वास है। तो देखो इंटरेस्ट इनकम जो बैंक रिकॉग्नाइज करता है वो किसके ऊपर कहता है, सर लोन्स एडवांसेज। तो एक्चुअली ये टॉपिक आपका है रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स एंड एडवांसेज, है ना। आप लिखे इस तरीके से, पूरा नाम है यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स एडवांसेज। अच्छा बताओ, बैंक ने जो लोन एडवांसेज पब्लिक को दिया है, बैंक ने जो दिया है वो बैंक का एसेट्स है कि लायबिलिटी है। सिर्फ बैंक का एसेट्स है। बैंक ने अगर लोन दिया है तो बैंक का तो एसेट्स होगा। तो अगर मैं ब्रैकेट में यहाँ पे एसेट्स को लिख दूं तो कोई पाप तो नहीं करूंगा? नहीं सर, आप बिल्कुल सही काम करोगे। ये लोन्स एडवांसेज जो है उस पे आए हुए इनकम को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, पता है इसको करने के लिए लोन्स एडवांसेज जो आपके होते हैं, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, बैंक के जो लोन्स एंड एडवांसेज होते हैं मेरे बच्चे, यानी कि मैं इसको ब्रैकेट में क्या बोल दूंगा, एसेट्स कह दूंगा, बैंक का एसेट्स है। कहते हैं कि ये जो लोन्स एडवांसेज हम इनको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है परफॉर्मिंग एसेट्स। सर ये क्या होता है, अभी बताऊंगा, लिखो मेरे साथ जैसे मैं कर रहा हूं। एक होता है परफॉर्मिंग एसेट्स और एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक होता है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मेरे बच्चे दो तरीके के आपके एसेट्स होते हैं, परफॉर्मिंग, दूसरा नॉन परफॉर्मिंग। हाँ, परफॉर्मिंग एसेट्स को शॉर्ट में हम पीए भी कहते हैं और नॉन परफॉर्मिंग को आप यहाँ पे एनपीए भी कहते हैं। अगर आप न्यूज सुनते हो तो देखो जरा, एग्जाम आपके न्यूज चैनल वाले हमेशा बोलते हैं पीए एनपीए, कई बार आपने सुना होगा। तो पीए यानी कि परफॉर्मिंग, दूसरा नॉन परफॉर्मिंग। सर ये क्या होते हैं, लिखिए इसके बारे में, लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में। कहते हैं कि दोज लोन्स एंड एडवांसेज, those loans and advances on which bank receives regular installments, bank receives regular installments without any default, और बच्चे वो कर्ज जिसमें बैंक रेगुलर पेमेंट रिसीव करता है बिना किसी डिफॉल्ट के, हम उसे पीए कहेंगे। और या फिर लिखेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट इन पेमेंट हैज बीन स्टार्टेड, डिफॉल्ट इन पेमेंट हैज बीन स्टार्टेड, बट पीरियड ऑफ डिफॉल्ट does not exceed 90 days। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, हमने कहा परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है वो लोन एडवांसेज जिसमें बैंक आपसे रेगुलर इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहा है, कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है, मतलब आराम से पेमेंट आ रहा है। या फिर किसी ने डिफॉल्ट कर तो दिया है लेकिन उसका डिफॉल्ट का जो पीरियड है अभी तक 90 डेज को क्रॉस नहीं किया है, मतलब 90 दिन को क्रॉस नहीं किया मेरे बच्चे। डिफॉल्ट उसका 80 दिन, 70, 60 ऐसा आपका है तो हम उसे कहेंगे वो परफॉर्मिंग एसेट्स आपका होता है। अच्छा सर, फिर सर एनपीए क्या होता है, लिखेंगे आप यहाँ पे, लिखना इफ पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एक्सीड्स 90 डेज। अगर किसी कस्टमर का डिफॉल्ट 90 दिन से क्रॉस कर चुका बच्चे, कॉमा, देन इट इज कॉल्ड
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए। सुना मेरी बात? यहाँ पे परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है जिसपे टाइम से पेमेंट आ रहा है, या फिर किसी ने डिफॉल्ट शुरू किया तो है लेकिन 90 डेज को क्रॉस नहीं किया। अगर 90 डेज को क्रॉस कर जाएगा तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे जी? यहाँ पे एनपीए बोलेंगे। आई बात समझ में सर? हाँ जी। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हमारा नॉर्म्स कहता है बैंक का, कहा गया है यहाँ पे लिखा हमने इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इनकम रिकॉग्निशन। ये जो इंटरेस्ट इनकम है यानी कि जो हम इस लोन एडवांसेज में जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा? मेरे बच्चे, अगर वो परफॉर्मिंग एसेट्स है जिसपे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पेमेंट आ रहा है, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो इनकम का रिकॉग्निशन होगा वो एक्रूवल बेसिस पे होगा। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है इस साल जितना इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है वो सारा इनकम मानेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे इनकम यहाँ पे इंटरेस्ट जो है या तो पैसा मिल चुका होगा या आगे मिलेगा, इसकी श्योरिटी है। सुनना मेरी बात, यहाँ पे अगर आपका परफॉर्मिंग एसेट्स है तो इनकम रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक्रूवल बेसिस पे, लेकिन सुन ध्यान से, एनपीए जहां पे डिफॉल्ट शुरू हो गया है, पता नहीं वो बदमाश कस्टमर हमें पे करेगा कि नहीं पे करेगा, तो हमारा नॉर्म्स कहता है बैंकिंग का कि भैया आप एक काम करो, यहाँ पे एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे आप इनकम को मानो, यानी कि ऐसे कस्टमर से जितना इंटरेस्ट आपके पास आ चुका है, जो पैसा आप रिसीव कर चुके वही इनकम मानना। पता नहीं वो आगे पे करेगा कि नहीं पे करेगा। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला? पीए पे एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल का मतलब क्या होता है जी? लिख दो ब्रैकेट में यहाँ पे, दैट इज ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब हो गया कि एक साल में जितना इंटरेस्ट उनसे लेना है, जितना हमें लेना है मेरे बच्चे, उन सबको इनकम मानूंगा, चाहे पैसा आ गया हो चाहे पैसा वो आगे आएगा, है ना। यहाँ पे ड्यू बेसिस हमारा पूरा अकाउंट यही तो कहता है कि अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस पे होनी चाहिए। इनके साथ भी कहा गया है। हाँ, जहां पे डर है कि पैसा कहीं डूब ना जाए, यानी कि एनपीए, इनसे जितना इंटरेस्ट हमें मिल चुका है वही हम इनकम मानेंगे और दूसरा कोई भी नहीं। सर एक काम करो ना, एक क्वेश्चन करके दिखा दो सर, हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो फिर आओ जरा मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1 आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा क्या बता रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं? सर हाँ सर मिटा दो, हो गया है। तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ और आप ये अपने पास रखना, जब मैं पूछूंगा तो मुझे बताना कि आपने इसका क्या किया है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, चैप्टर ही बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, जितनी बातें करेंगे हम उतनी बातें पढ़ना है। मैं इसकी थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल पार्ट दोनों क्लास में साथ साथ लेके चलूंगा ताकि आपका चैप्टर में इंटरेस्ट बना रहे। अब देखो ना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। नंबर 1 कहता कि गिवन बिलो इज द डिटेल ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज ऑफ ए कमर्शियल बैंक। एक कमर्शियल बैंक है जिसमें कहता है कि इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज कहता है, रुपीज कहता है, इन लैक्स आपका है। देखो ना, एडवांसेज 3 तरीके के, एक कह रहा है टर्म लोन, एक कहता है कैश क्रेडिट और एक कहता है बिल्स परचेज। टर्म लोन मेरे बच्चे लंबे समय का लोन होता है, लंबे समय के लिए। कैश क्रेडिट आपका ओवरड्राफ्ट का ही दूसरा नाम होता है। तो कैश क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, ये भी बैंक ने कर्ज ही तो दिया है। एंड बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, आपने 11वीं क्लास से पढ़ा है कि बिल बैंक से हम डिस्काउंट कर लेते हैं। तो बिल जो हमने बैंक से डिस्काउंट किया, बैंक उस पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो उसका इनकम आपका है। अब देखो अगले कॉलम में 2 चीज दिख रहा होगा, ऊपर में एक परफॉर्मिंग एसेट्स, दूसरा दिख रहा होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना बच्चों। सर हाँ, परफॉर्मिंग एसेट्स में भी 2 कॉलम है, इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अर्न का मतलब कि इंटरेस्ट इस साल बना कितना टोटल ड्यू बेसिस, लेकिन इनमें से जो रिसीव हो चुका है मेरे बच्चे 80 है। जरा सुनना ध्यान से, टर्म लोन का दोबारा पढ़ना। टर्म लोन परफॉर्मिंग एसेट्स में कहता है कि अर्न कितना किया सर 100, लेकिन उसमें रिसीव कितना किया 80, यानी कि 20 भी रिसीव करना बाकी है। खैर कोई बात नहीं, हमने कहा था कि परफॉर्मिंग एसेट्स पे इनकम होगा एक्रूवल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे। और जरा बताओ ड्यू कौन सा है, अर्नड या रिसीव्ड? बताओ ना सर। ये अर्नड है, अर्न मतलब जो 1 साल में ड्यू हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से एनपीए में भी 2 कॉलम है, एक इंटरेस्ट अर्नड और एक आपका इंटरेस्ट रिसीव। जरा बताओ एनपीए में कौन सा लूंगा, अर्नड या रिसीव? सर रिसीव्ड, क्योंकि इसमें एक्चुअल जो रिसिप्ट हुआ वही इनकम माना जाता है, ऐसे आपने कहा था। बोलता कि कैलकुलेट इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2007। बहुत पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, आपके ध्यान देते हैं क्या निकल के आएगा। लिखिए मेरे साथ, सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1,
आप एक काम करना, यहां लिखो आप पहले अपने एसेट्स यानी कि एडवांसेज के नाम, फिर मैं यहां लिखूंगा पीए और बता दूंगा एग्जामिनर को कि एक्रूवल बेसिस पे इनकम ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और फिर मैं यहां लिखूंगा एनपीए। मैं उनको समझाऊंगा कि ये जो एक्चुअल रिसिप्ट जितना हुआ है वही इनकम माना जाएगा। एग्जाम में मेरे बच्चे एग्जामिनर को हम बेवकूफ मानते हैं, उसे कुछ नहीं आता, तो उसको सारी बातें हमें तरीके से समझानी पड़ती है, तब वो हमें मार्क्स देता है। अब देखो ना, एडवांसेज यानी कि एसेट्स में 3 नाम हैं। एक कहता है आपका टर्म लोन, लिखिए यहाँ पे। सेकंड में कहता है कि कैश क्रेडिट, और तीसरे में कहता है कि बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। बताओ जरा, यहाँ पे आपका टर्म लोन, कैश क्रेडिट और बिल्स परचेज, मुझे बताइए कि परफॉर्मिंग एसेट्स में कौन सा कॉलम लो, इंटरेस्ट अर्नड या रिसीव्ड? सर एक्रूवल बेसिस यानी कि इंटरेस्ट अर्नड। तो बताओ टर्म लोन पे कितना है जी? 100। कैश क्रेडिट पे कितना मेरे बच्चे? 200। और बिल्स परचेज पे कितना बता रहा है? 300। हमने इसको ले लिया। लेकिन मुझे बताइए एनपीए जो हमारा है नॉन परफॉर्मिंग, उस पे कौन सा लो? सर रिसिप्ट यानी कि जो रिसीव किया है, यानी कि टर्म लोन पे ऐसे तो इंटरेस्ट हमने 50 कमाया, लेकिन मेरे बच्चे रिसीव 20 हुआ है, तो 20 को ही मानूंगा, पता नहीं आगे का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 60 आपका ये हो गया और 90 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो ये जरा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, बात बन गई है। बताइए परफॉर्मिंग एसेट्स पे टोटल इनकम कितना हो गया? सर 600। और जरा बताओ एनपीए पे कितना आ गया? ये कितना हो गया जी? 170। तो ये दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल कितना हो गया? 770। और ये लैक्स से मेरे बच्चे, क्योंकि सारे फिगर लैक्स में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। जरा बताओ क्या दम है, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो 3 से 5 नंबर देता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, और इसमें कुछ है नहीं, हमें सिर्फ इतना काम करना होता है। सर एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, ये तो बहुत अच्छा लिखा आपने, आप तो कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन इससे अच्छा प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं हो सकता है। आप इसकी कॉपी कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सोल्यूशन आपको दिखा दिया। अच्छा सर और भी ऐसा क्वेश्चन करा दो ना। तो आओ जरा एक क्वेश्चन और खास आपके लिए मैंने बनाया है, क्वेश्चन नंबर 2। जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपको। यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान सुनना। देखो क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 2। मिल गया आपको? सर हाँ, ये हो गया सबका ना? सर ये तो हो गया है। पढ़ो ना फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है। देखो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये भी है। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेज ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एज ऑन 31 मार्च 2007। कहता है कि इंटरेस्ट अर्नड और फिर कहता है इंटरेस्ट रिसीव, सारे फिगर इन लैक्स है। नीचे कहता है परफॉर्मिंग एसेट्स में 3 नाम और एनपीए में फिर से 3 नाम। वही काम किया बच्चे, क्वेश्चन में टेबल को दूसरे तरीके से दिखा दिया, कुछ चेंज थोड़े ही किया है। बोलता है कि जरा बताओ फाइंड आउट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2007। आओ जरा मैं फटाफट काम करो, यही करा देता हूं। क्या जाएगा सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए जरा एसेट्स यानी कि जो एडवांसेज है उनको मैं यहां लिखूंगा। ये हमारा पीए हो गया और ये हमारा एनपीए हो गया। पीए में इनकम होता है मेरे बच्चे एक्रूवल बेसिस पे, एक्रूवल बोल सकते हैं, ड्यू बोल सकते हैं, मर्केंटाइल बोल सकते हैं, सबका मीनिंग सेम होता है। और यहाँ पे रिसिप्ट जितना हमने रिसीव कर लिया वही इनकम माना जाएगा, ऐसा एनपीए पे आपका होता है। अब जरा क्वेश्चन में जल्दी पढ़ के बता दो कौन कौन से एसेट्स हैं, मतलब कौन कौन से लोन हैं। सर एक तो टर्म लोन है, यहाँ लिखिए टर्म लोन, लंबे समय के लिए जो लोन देते हैं बच्चे हम उसे टर्म लोन कहते हैं। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है ना उसी का दूसरा नाम है कैश क्रेडिट। और तीसरा आपका बिल्स परचेज्ड, जो बिल परचेज किया गया, परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, तो ये हमारा थर्ड नाम निकल के आ गया। बताइए आपका पीए में कौन सा लेंगे? सर इंटरेस्ट अर्नड कितना है जी? 240 टर्म लोन पे। कैश क्रेडिट पे कहता है कि 1500 का अमाउंट है और बिल्स परचेज पे कहता है कि 300 का अमाउंट है, ठीक है। अच्छा बताओ एनपीए पे कौन सा कॉलम लेंगे? सर बाद वाला, यानी कि 10, फिर आपका यहाँ पे 24 और फिर आपका यहाँ पे 40। मुझे जरा बताओ ना जल्दी से, आखिर हमारा क्या निकल के आ रहा अमाउंट यहाँ पे? सर 240 प्लस 1500 और प्लस सर 300, ये अमाउंट आ गया 2040 का अमाउंट। अच्छा बताओ एनपीए पे कितना आ गया? 10 प्लस 24
एंड प्लस आपका 40, ये आ गया मेरे बच्चे 74। जरा दोनों को ऐड करके बताओ आपका इनकम कितना बन गया। सर दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो ये आ गया सर 2114 लैक्स, इतना हमारा क्या बचे इनकम निकल के आपको आया बच्चे। लीजिए हमारा काम पूरा हुआ। तो फर्स्ट टॉपिक जो था इनकम, इंटरेस्ट इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो मैंने बता दिया आपको। जितने भी एडवांसेज आपने पब्लिक को दिए हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, पीए एनपीए। अगर वो पीए है तो इनकम होगा एक्रूअल बेसिस पे, और अगर वो एनपीए होगा तो रिसीव बेसिस। टॉपिक हमारा खत्म हो गया। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आई होप आपने पिछले चैप्टर्स का रिवीजन किया होगा, उनको ढंग से पढ़ा होगा। और दोस्तों इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जैसे कोई चैप्टर आप ख़त्म करो इमीडिएटली मुझको आप मैसेज करो और मेरे से टेस्ट लो, क्योंकि अगर आपने टेस्ट साइड बाय साइड दिया ना तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और जब आप एग्जाम के करीब आओगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल रीडिंग और अ लर्निंग फिनोमिना। तो आपका जो कर्व होगा ना, लर्निंग कर्व, वो बहुत बढ़िया होगा अगर आपने रेगुलरली जो जो चैप्टर्स आप करते जा रहे हो उनका आपने रेगुलरली टेस्ट दिया तो। ठीक है सर, हम आपको रेगुलरली टेस्ट भी देंगे। परफेक्ट। तो दोस्तों आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करते हैं, क्या क्या टाइमलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, कंपनी को कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं, कंपनी को कब कब फाइलिंग्स करनी पड़ती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, शेयर होल्डर से कब परमिशन लेनी पड़ती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कब परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों ये सारे एस्पेक्ट्स तो हमने कवर कर लिए चैप्टर नंबर 4 और 5 में। अब हम देखते हैं हमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है, मतलब अपनी ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है और वो कैसे प्रेजेंट करनी है शेयर होल्डर्स को, या जो भी उस रिपोर्ट को मांग रहा है कैसे प्रेजेंट करनी है। अब हम उस वाले एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे। तो आज का हमारा सेक्शन होगा प्योरली ऑडिट रिपोर्ट पे। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे बनती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, उसके अंदर कौन कौन से पैराग्राफ्स इंसर्ट होंगे, ये सब चीजें हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, तो बात समझ में आ गई। आज ऑडिट रिपोर्ट पे हमारा सारा का सारा फोकस रहेगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात बता दो, ये ऑडिट रिपोर्ट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट रिपोर्ट? सर हमें तो पता नहीं क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा चलो मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। पतंजलि का फाइनल प्रोडक्ट क्या है जो पतंजलि बेचती है? सर पतंजलि बहुत सारी चीज़ें बेचती है, मेडिसिन बेचती है, आटा बेचती है, गेहूं बेचती है, चावल बेचती है, और सारा होम कंजम्पशन का किचन वेयर सारा का सारा बेचती है। किचन में जितना कंज्यूम होता है सामान वो बेचती है, शैम्पू बेचती है, सोप बेचती है, डिटर्जेंट है उसका, और बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है सर। उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से पतंजलि जानी जाती है। ठीक है सर। अच्छा हल्दीराम क्या बेचता है? सर हल्दीराम फूड आइटम्स बेचता है, इंस्टेंट फूड बेचता है, इंडियन कुजीन बेचता है, चाइनीज़ कुजीन वो अपने पास रखता है, और सर वो मिठाइयाँ बेचता है, कुछ बेवरेजेस भी साथ में बेचता है, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरीज भी साथ में बेचता है। ये हल्दीराम बेचता है। तो अल्टीमेट जो हल्दीराम का आउटपुट है या जो प्रोडक्ट है वो ये सारी चीज़ें हैं सर, एकदम परफेक्ट। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ये क्या बेचता है? सर ये डिटर्जेंट, सोप्स, एफएमसीजी कंपनी है, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और ये जितने भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं उन सबको बेचते हैं और उनके बारे में ये जाने जाते हैं उनसे। ठीक है भाई। अच्छा भारती एयरटेल क्या बेचता है? सर भारती एयरटेल टेलीफोन कनेक्शंस बेचता है, सर्विस देता है टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो सर्विसेज बेचता है अपनी। ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज और बता दो, क्या तुम लोग एक कंपनी को पैसे देते हुए वो जो कंपनी है उसको ध्यान में रखते हो या अपने अल्टीमेट प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हो? नेचुरली सर हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है। प्रोडक्ट जो हमें हाई क्वालिटी का देगा, बढ़िया देगा, हम तो उसके पास अपने पैसे देंगे, हम तो वहां पर अपना प्रोडक्ट वहीं से खरीदेंगे डेफिनेटली। सो अल्टीमेटली जो पूरा फोकस है किसी भी कंपनी का वो कहां होना चाहिए? उसके फाइनल प्रोडक्ट पे। अब वो प्रोडक्ट बना कैसे है?
उसके पीछे की कहानी क्या है, वो कैसे मार्केट में आया है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे है, उसका प्राइस इतना कम कैसे है, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आप उसको इतना सस्ता कैसे बेच पा रहे हैं, ये सब कंज्यूमर को नहीं पता। कंज्यूमर को सिर्फ फाइनल आउटपुट दिख रहा है, फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है, कैसे बना है, क्यों बना है, कितने टाइम में बना है, कंज्यूमर को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। परफेक्ट सर। अब एक और प्रोडक्ट मुझे ध्यान में आया, आईफोन। आईफोन की बताओ खासियत क्या है, एप्पल का आईफोन या कोई भी आई प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो उसकी खासियत क्या है। दोस्तों उसकी खासियत यह है कि वो फ्लॉलेस होता है। फ्लॉलेस माने आईफोन कभी हैंग नहीं करता, आईफोन की यूटिलिटी बहुत परफेक्ट होती है। खैर आजकल तो सैमसंग, एरिक्सन, आप किसी का भी फोन ले लीजिए तो उनका यूटिलिटी लेवल काफी ज्यादा हाई है, तो सब लोगों ने अपनी क्वालिटी पे ध्यान दिया है। तो सर अब सवाल ये उठता है ऑडिटर के लिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कॉस्ट अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है, जो ऑडिट करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल ऑडिट करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा, इन तीनों के लिए इन तीनों का फाइनल आउटपुट क्या है जो कंज्यूमर देखेगा अपनी आंखों से। सर वो आउटपुट है ऑडिट रिपोर्ट। सो जितनी मेहनत एप्पल आईफोन अपने आईफोन पे करता है, आईपैड पे करता है, आईपॉड पे करता है, जितनी मेहनत पतंजलि अपने फूड प्रोडक्ट्स पे करता है, उनकी गुणवत्ता पे करते हैं, उनकी क्वालिटी और प्राइसिंग पे करते हैं, जितनी मेहनत HUL अपने शैम्पूज, सोप्स और मल्टीपल FMCG प्रोडक्ट्स में करता है, उतनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट ना केवल टेक्निकली परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी नजर आनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस नजर आना चाहिए, बोलनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट, बल्कि दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए। फॉन्ट साइज, फॉर्मेट, कैसे आपने उसको स्ट्रक्चर किया है, कितना अलाइनमेंट छोड़ा है, दोनों मार्जिन सही से छोड़े नहीं छोड़े, हेडिंग हेडर कितना छोड़ा है, फुटर कितना छोड़ा है, उसमें जो फॉन्ट है कहीं ऐसा तो नहीं है 2 लाइनें 12 फॉन्ट में लिखी हैं और 2 लाइनें 10 फॉन्ट में लिखी हैं, या ऊपर फॉन्ट यूज हुआ है एरियल, नीचे फॉन्ट यूज हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। ना केवल आपका ऑडिट रिपोर्ट टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए, बल्कि वो दिखने में भी एकदम A1 होना चाहिए। फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, इंडेंट, सब चीजें एकदम परफेक्ट होनी चाहिए आपकी ऑडिट रिपोर्ट में। और आज हमारा सारा का सारा फोकस, इस चैप्टर का सारा फोकस होगा ऑडिट रिपोर्ट पे। तो आओ डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं ऑडिट रिपोर्ट की। ऑडिट रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? ठीक है सर, तो ऑडिट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एवरी ऑडिट। तो ये भाई अल्टीमेट प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। जैसे उन कंपनीज के लिए उनके गुड्स फाइनल प्रोडक्ट है, आपके लिए, आप जो ऑडिटर हो, आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है? आपकी ऑडिट रिपोर्ट आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है। अ रिपोर्ट इज स्टेटमेंट ऑफ कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड फैक्ट्स। तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट में फैक्ट्स जमा करे हैं, जो आपने कलेक्ट करे हैं और कंसिडर करे हैं फैक्ट्स, उन सब का जमा पूंजी है एक तरह से आपकी ऑडिट रिपोर्ट, विच गिव्स क्लियर एंड कॉन्शियस कंसाइज इंफॉर्मेशन। आपके ऑडिट रिपोर्ट का फीचर क्या है? वो क्लियर इंफॉर्मेशन देगा, प्रिसाइज, कंसाइज, एकदम छोटी फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा टू द पर्सन्स हु आर नॉट ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ फुल फैक्ट्स। तो वो लोग जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये कहां से पता लगेगा? उनको ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट से पता लगेगा। दोस्तों कंपनी को एक बिल्डिंग मानो, उस बिल्डिंग में से कुछ लोग एक खिड़की के थ्रू झांक रहे हैं। वो लोग कौन है? वो बिल्डिंग के बाहर हैं। वो लोग हैं क्रेडिटर्स, बैंक्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेयर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। ये सब लोगों को कंपनी के अंदर जाना अलाउड नहीं है, ये कंपनी के बाहर खड़े हैं, बस एक खिड़की है, उस खिड़की के थ्रू झांक रहे हैं। अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज कुछ काम कर रहे हैं, फाइनेंस मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स कुछ काम कर रहे हैं अंदर, और बाहर से जो देख रहा है उसके पास क्या एक सहारा है? बस एक कांच की खिड़की का सहारा है। अब बताना जरा, वो कांच की खिड़की अगर गंदी हुई तो क्या अंदर कुछ दिख पाएगा? नहीं सर, अंदर कुछ भी नहीं दिख पाएगा। तो हम ऑडिटर्स का क्या काम? हम ऑडिटर्स का काम उस कांच की खिड़की को एकदम झाड़ पोंछ कर, हार्पिक डालकर, उसमें कॉलिन से साफ करके चमकदार बना के रखना है, हर समय ट्रांसपेरेंट बना के रखना है। पता है ये खिड़की क्या है? ये खिड़की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी कंपनी। और ये जो आप इस खिड़की पे पानी मार के इसको साफ कर रहे हो, ये प्रोसीजर क्या है? दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। तो आपको हर समय इस खिड़की को एकदम
क्रिस्टल क्लियर रखना है, ये ऑडिटर का काम है, ताकि बाहर से जो लोग कंपनी के अंदर झांक रहे हैं, जिन्हें आना अलाउड नहीं है कंपनी के अंदर, वो नहीं घुस सकते, उनको क्लियर कंसाइज इंफॉर्मेशन मिले कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है इस बारे में। तो इस डेफिनेशन में आपने देखा तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने हाईलाइट करी। वो तीनों चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? इट इज़ द अल्टीमेट एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एवरी ऑडिट। और ये किस बेसिस पे बनता है? कलेक्टेड एंड कंसिडर्ड फैक्ट्स के बेसिस पे ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, और इसमें क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन दी जाती है टू ऑल द पर्सन्स हु आर नॉट ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो ये आउटसाइडर्स के लिए होता है। बेसिकली देखो, जब भी तुम प्रैक्टिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जो चेयरमैन होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उनको ऑलरेडी पता होता है कंपनी में क्या चल रहा है। मोस्टली जितने भी कंपनी में फ्रॉड्स होते हैं या गबन होते हैं, उन सब में मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती ही होती है मोस्टली केसेस में। तो मैनेजमेंट को सब पता है उनके पास क्या चल रहा है। तो ये ऑडिट किस लिए किया जाता है, या ये ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बनाई जाती है? दोस्तों ये बनाई जाती है स्टेक होल्डर्स के लिए। ये मैनेजमेंट के लिए नहीं, ये बनाई जाती है स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि स्टेक होल्डर्स अपने हितों की रक्षा कर सके, उन्हें पता लगता रहे कि भाई हो क्या रहा है कंपनी के अंदर। अगर उन्हें पता नहीं लगा कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, तो वो राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उनको डिसीजन लेने के लिए जरूरत होती है ऑडिट रिपोर्ट की। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो कि हम ऑडिटर्स के लिए तो भाई हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है ऑडिट रिपोर्ट। तो अच्छा, अब ये ऑडिट रिपोर्ट का सर कोई एलिमेंट्स भी होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए? हाँ भाई, लॉ एकदम प्रिस्क्राइब करता है प्रिसाइजली कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या पैराग्राफ्स या क्या क्या स्टेटमेंट्स होनी जरूरी है। नंबर 1, ऑडिट रिपोर्ट में एक टाइटल होना जरूरी है, बहुत ज्यादा। टाइटल से ये पता लगता है कि ये ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की ऑडिट रिपोर्ट है, इसका पर्पस क्या है इस ऑडिट रिपोर्ट का, वो हमको टाइटल से पता लगता है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट इज द टाइटल। द ऑडिट रिपोर्ट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट टाइटल, लाइक ऑडिटर्स रिपोर्ट। आप ऑडिटर्स रिपोर्ट लिख दो उसके अंदर, ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसको पता लगे कि हाँ ये क्या रिपोर्ट है, किस सब्जेक्ट पे रिपोर्ट है। इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर रिपोर्ट्स। तो अदर रिपोर्ट से हमें डिस्टिंग्विश करना है, इसीलिए हमको इस पे एक टाइटल लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अदर रिपोर्ट्स क्या हो सकती हैं? रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द एंटिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी जो चीज आपकी ऑडिट रिपोर्ट में होनी चाहिए वो है सर एड्रेसी। एड्रेसी मतलब ये रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रही है। तो दोस्तों यूजुअली किसको एड्रेस करा जाता है? जो अथॉरिटी अपॉइंट करता है ऑडिटर को, उसे ही रिपोर्ट भी एड्रेस करी जाती है। तो अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो रिपोर्ट एड्रेस करी जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है शेयर होल्डर्स, तो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एड्रेस करी जाएगी शेयर होल्डर्स को। अब तुम लोग मुझे बता दो, फाइनेंशियल ऑडिट के केस में किसको रिपोर्ट एड्रेस होनी चाहिए? फाइनेंशियल ऑडिट के केस में शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट किसने किया है? शेयर होल्डर्स ने किया है। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट के रिस्पेक्ट में किसको एड्रेस होनी चाहिए रिपोर्ट? कॉस्ट ऑडिट के रिस्पेक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। परफेक्ट। सेक्रेटेरियल ऑडिट के केस में किसको रिपोर्ट एड्रेस होनी चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। परफेक्ट। तो जिसने भी अपॉइंट किया है, जनरली ऑडिट रिपोर्ट उसी को एड्रेस होती है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम ये करते जा रहे हैं, आओ एक मैंने प्रैक्टिकली एक ऑडिट रिपोर्ट, जो एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट है, वो गूगल से डाउनलोड करी आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली में ऑडिट रिपोर्ट कैसी दिखती है। आ जाओ जरा, नेक्स्ट ही पेज पे हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाई हुई है, तो देखना जरा। सबसे पहली चीज जो ऑडिट रिपोर्ट की होती है वो है उसका टाइटल। तो यहां पर टाइटल क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा देखना, इसके ऑडिटर्स कौन है? एक तो कंपनी है चतुर्वेदी एंड शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक है डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स। डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स इज वन ऑफ द बिग 4 ऑर्गेनाइजेशंस। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑडिट के फील्ड में एकदम नंबर 4 मानी जाती हैं, टॉप 4 ऑर्गेनाइजेशंस। उनमें से एक है डिलॉयट, और डिलॉयट और चतुर्वेदी शाह जॉइंट ऑडिटर्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज एक ऑडिटर अपॉइंट नहीं करती दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज 2 ऑडिटर्स अपॉइंट करती हैं कई बार, तो उन्हें कहते हैं जॉइंट ऑडिटर्स। इसका कंसेप्ट भी हम और चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। इस कंपनी के लिए बताना जरा कौन से 2 ऑडिटर्स हैं? एक ऑडिटर है चतुर्वेदी एंड शाह, दूसरा ऑडिटर है डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स। अच्छा बताना ये कंपनी कौन सी है? ओहो इंडिया का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस की एक कंपनी है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जिसकी ये रिपोर्ट है। तो देखो हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा टाइटल और दूसरा पढ़ा ये क्या है? ये है एड्रेसी। तो आप हाथ के हाथ इस वाली रिपोर्ट में लिखते जाओ
क्या पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो टाइटल एंड एड्रेसी, दो चीजें हमने पढ़ी थी ऊपर, टाइटल एंड एड्रेसी इस वाली रिपोर्ट में हमें दोनों ही पता लगी। ठीक है सर। नेक्स्ट है दोस्तों ओपनिंग एंड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहला पैराग्राफ होना चाहिए किसी भी ऑडिट रिपोर्ट का, वो है ओपनिंग पैराग्राफ। सर ये ओपनिंग पैराग्राफ क्या होता है और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आओ देखते हैं क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए। भाई एंटिटी का नेम, डेट एंड पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पीरियड के बनाए गए हैं, किस पीरियड से। तो हमारे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर रिकॉग्नाइज होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो ये हमारा हो गया पीरियड ऑफ ऑडिट। आपको दूसरी चीज पीरियड ऑफ ऑडिट बताना है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटिटीज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट रिपोर्ट। हमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली बताना पड़ता है। भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करके उन पे एक रिपोर्ट देना। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आओ जरा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओपनिंग पैराग्राफ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्या वो हमको दिए हुए हैं। बिल्कुल सर, आ जाओ देखते हैं। वी हैव ऑडिटेड द accompanying statement of audited standalone financial results। लो भाई कौन से फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, किस कंपनी के हैं, रिलायंस जियो के हैं, किस पीरियड के हैं, 6 महीने के हैं, 6 months एंड ईयर एंडेड, 6 months पीरियड एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बीइंग सबमिटेड बाय द कंपनी। भाई बनाए किसने हैं, ये बनाए हैं कंपनी ने बनाए हैं भाई, ये परसुएंट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेगुलेशन 52 ऑफ द सेबी। तो सेबी की कोई गाइडलाइंस है जिनके परसुएंट ये वाला ऑडिट हो रहा है, जिसके परसुएंट ये वाली ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई है। ये कंपनीज एक्ट वाली ऑडिट रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, जो हमने 143 139 सेक्शन पढ़ा था, वो वाली रिपोर्ट नहीं है। ये है सेबी के परसुएंट एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दी है कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने। तो ये है आपका स्कोप पैराग्राफ। अब देखना स्कोप में रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एलिमेंट होता है वो अगले पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है। द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। भाई सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है कंपनी के मैनेजमेंट की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद में आती है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को बता दो भाई तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है। हैज बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब जरा इसको करने से पहले आओ जरा हम स्कोप पैराग्राफ पढ़ लें। ये नेक्स्ट चीज जो है स्कोप पैराग्राफ क्या होती है। दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब स्कोप पैराग्राफ में दोस्तों आप बताते हो कि आपका ऑडिट हुआ है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो आपने कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं ऑडिट करते हुए, आपको ये बताना पड़ता है। फिर ऑडिट जो हुआ है वो रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए हुआ है, where the financial statements are free from material misstatement। रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए हुआ है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट चीज जो आपको लिखनी है इस वाले पैराग्राफ में वो है हमने टेस्ट चेक बेसिस पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और लास्ट चीज क्या है, स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर दैट ऑडिट प्रोवाइड्स अ रीजनेबल बेसिस फॉर हिज ओपिनियन। अगेन वही बात आती है कि जो आपको लेवल ऑफ ओपिनियन मिल रहा है वो रीजनेबल बेसिस पे मिल रहा है। ठीक है सर, आओ जरा अपनी रिपोर्ट पे वापस चलते हैं। तो रिपोर्ट कहती है it has been prepared on the basis of related standalone audited financial statements which have been prepared in accordance with Indian accounting standards prescribed under section 133 of the Companies Act related with rules issued under Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. Our responsibility is to express an opinion on the statement। तो देखो मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी कि प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ ओपिनियन देना। प्रिपेयर करने में हम इन्वॉल्व नहीं थे, हम सिर्फ ओपिनियन देने में इन्वॉल्व थे। तो ये है आपका सेकंड पैराग्राफ। अब आ जाओ थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं जो कि है हमारा स्कोप पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ का क्या नाम था, फर्स्ट पैराग्राफ का नाम था ओपनिंग पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ का क्या नाम, वही दोस्तों ओपनिंग पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और थर्ड पैराग्राफ का क्या नाम, ये जो बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसका क्या नाम, सर इसका नाम है स्कोप पैराग्राफ।
ये बताएगा कि ऑडिट करते हुए हमने किन किन चीजों का ध्यान दिया है, किसके बेसिस पे ऑडिट किया है। आओ साथ में पढ़ते हैं। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू पे के बेसिस पे अपना ऑडिट किया है। So the paragraph starts by saying कि we conducted our audit in accordance with standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India। तो हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बेसिस पे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू करे हैं, उसके बेसिस पे हमने अपना ऑडिट किया है। तो जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है वो ये बोल रहा है, Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the statement is free from material misstatement। अब कुछ वर्ड्स हैं दोस्तों यहां पर, जो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन वर्ड्स पे मैं थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहता हूं। सबसे पहले तो देखो, ये मिस स्टेटमेंट क्या होता है। मिस स्टेटमेंट होता है एरर और मिस्टेक और फ्रॉड। तो किसी भी चीज की वजह से अगर कोई चीज गलत है उसे कहते हैं मिस स्टेटमेंट। अब वो गलती की वजह से भी हो सकती है, मिस्टेक की वजह से भी हो सकती है, वो फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है, किसी भी चीज की वजह से हो सकती है। तो हमें क्या एश्योरेंस देना है, ऑडिटर को क्या एश्योरेंस देना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री हैं, मतलब उसके अंदर नहीं है, क्या नहीं है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मटीरियल का क्या मतलब होता है? मटीरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या लार्ज, बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट नहीं है। देखो, छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट है, मान लो एक बिल है 221 रुपए का, वो जब चढ़ाया हमने अपने अकाउंट्स में तो वो बन गया 212 रुपए। तो छोटी सी मिस्टेक है, इसमें ऑडिटर कोई अपना ओपिनियन चेंज नहीं करेगा। मिस्टेक होनी चाहिए बड़ी बड़ी, मतलब जिसका अमाउंट बड़ा हो, और जिसका अमाउंट बड़ा होगा ऐसी मिसस्टेटमेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हम ये लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है। अब एक बात ध्यान देना, सर जो ओपिनियन दिया जा रहा है ना, वो रीजनेबल एश्योरेंस से दी जा रही है। सर इसका क्या मतलब होता है? रीजनेबल एश्योरेंस। दोस्तों अब समझना रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात तो ऑडिटर 100% गारंटी नहीं दे सकता कि सारी गलतियां उसने पकड़ ली हैं, ये गारंटी नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकता। तो मैं दूसरा जो वर्ड लिखने जा रहा हूं वो है एब्सोल्यूट ओपिनियन। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट ओपिनियन नॉट पॉसिबल। अगर तुम मुझे कहो कि भाई एक एक ट्रांजैक्शन एकदम परफेक्ट थी और ये आप लिख के दे दो, ये मैं नहीं लिख के दे सकता। एब्सोल्यूट assurance is not possible. Then what is possible? Possibility is of reasonable assurance. Reasonable का क्या मतलब होता है? Reasonable का मतलब होता है high but not absolute. तो हाई तो एश्योरेंस है, तो मैं भाई 50% से तो ज्यादा की एश्योरेंस ले लेता हूं, 60% 70% तक तो मैं एश्योरेंस ले लेता हूं कि सब कुछ सही है। लेकिन हां, 100% की एश्योरेंस मैं आपको नहीं दे सकता। हर ऑडिट का दोस्तों, हर ऑडिट का जो ओपिनियन होता है वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस होता है। क्योंकि खुद सोचो ना, पूरे साल में जो लाखों ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लाखों ट्रांजैक्शंस, एक एक कंपनी में लाखों, बड़ी बड़ी कंपनीज में लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्या ऑडिटर मात्र कुछ 100 दिन में, 150 दिन में, क्या वो ऑडिटर सारी की सारी ट्रांजैक्शन को ऑडिट करके अपना ओपिनियन सही सही 100% दे सकता है? नहीं। सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग मतलब 10 ट्रांजैक्शन है, उसमें से 2 ट्रांजैक्शन देख ली, बाकी 8 नहीं देखी, या 4 ट्रांजैक्शन देख ली, बाकी 6 नहीं देखी। सैंपलिंग मेथड यूज होता है। इस तरह की ऑडिट प्रोसीजर्स यूज होते हैं जो टाइम को सेव करें, और वो टाइम सेविंग के चक्कर में हम लोग कभी भी अपने ओपिनियन में एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। हम हमेशा कौन सी एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रीजनेबल एश्योरेंस का और एब्सोल्यूट एश्योरेंस का। तो कोई आपसे पूछे, बताओ जरा रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब है, तो आपको क्या बोलना है? सर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। हाई एश्योरेंस तो दे रहे हैं, मतलब 50% से ऊपर की एश्योरेंस ले लो भाई, 60% 70% तक की एश्योरेंस तो ले लो, लेकिन 100% एश्योरेंस ये नहीं दे सकते हम।
सो ये पैराग्राफ आपको क्या बोलता है? ये पैराग्राफ बोलता है कि हमने ऑडिट कंडक्ट किया और हमारा जो एश्योरेंस है वो रीजनेबल एश्योरेंस है अबाउट वेदर द स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम, वेदर जो ये स्टेटमेंट है वो फ्री है, किस चीज से फ्री है? मटीरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है। ये हम रीजनेबल एश्योरेंस आपको दे रहे हैं। एंड ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनिंग ऑन अ टेस्ट बेसिस। अब देखो स्कोप पैराग्राफ में हम अपना डिस्क्लेमर दे रहे हैं, भाई वो होता है ना कई बार एस्ट्रिक्स लगा होता है छोटा सा, आप जब प्रोडक्ट खरीदते हो लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, फिर वो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन कहीं कोने में लिखी होती हैं। ये वही वाला पैराग्राफ है जो कह रहा है भाई हमने जो ऑडिट कंडक्ट किया है 100% बेसिस पे नहीं किया, मतलब नॉट 100% चेकिंग, 100% चेकिंग नहीं हुई है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। पर प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकती, एक साल में जो ट्रांजैक्शन हुई है उनकी 100% चेकिंग करने के लिए 2-3 साल चाहिए कम से कम, प्रैक्टिकली नहीं हो सकती। हमने 100% चेकिंग नहीं करी है। हमने क्या प्रोसीजर अपनाया है? हमने प्रोसीजर अपनाया है सैंपलिंग। तो आप कभी बाजार जाते हो गेहूं खरीदने, चावल खरीदने, तो आपकी मदर पूरी की पूरी बोरी होती है, 4 किलो 5 किलो की पैकेट होता है, उसमें से कुछ दाने उठा के देखती हैं हाँ सही है, रख देती हैं वापस और कहती हैं इसका 1 किलो दे दो। व्हाट इज दैट? दैट इज सैंपलिंग, टेस्ट चेकिंग। तो क्योंकि ये सैंपलिंग प्रोसीजर हम अपने ऑडिट में भी इस्तेमाल करते हैं तो हम 100% एश्योरेंस तो नहीं दे सकते। अरे भाई कितनी बार होता है आप मैंगो खरीदने जाओ बाजार में, आपने एक मैंगो देखा, हाँ ठीक है मैंगो आपने कहा भाई 1 किलो पैक कर दो, पता लगा जो और आपने ठीक से नहीं देखे थे वही मैंगो खराब निकले, ऐसा होता है ना? तो ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप क्या करते हो? आप करते हो टेस्ट चेकिंग। एन ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनिंग ऑन अ टेस्ट बेसिस एविडेंस एंड सपोर्टिंग अमाउंट्स disclosed in the statement. An audit also includes evaluating appropriateness of the accounting policy used and reasonableness of accounting estimates. तो हमने क्या चेक किया है? हमने अकाउंटिंग पॉलिसी की अप्रोप्रिएटनेस भी चेक करी है कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक तरीके से बनी हो और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ठीक तरह से बने हो, हमने ये भी चेक किया है। मेड बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज इवैल्यूएटिंग ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो देखो प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? प्रेजेंटेशन का सर मतलब होता है जो डिस्क्लोजर्स करें हैं ना वो सही से होने चाहिए, जहां जहां जो जो चीजें आनी चाहिए वो सारी चीजें प्रेजेंटेशन में एकदम सही हैं और सही तरह से दिख रही हैं, ये मतलब होता है प्रेजेंटेशन का। वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय अस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर ऑडिट ओपिनियन। हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमने ऑडिट का ओपिनियन दिया है, जो कि रीजनेबल ओपिनियन दिया है, उसमें जो ऑडिट एविडेंस गैदर करे हैं, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स गैदर करे हैं अपने ऑडिट ओपिनियन को देने के लिए, वो रीजनेबल है, वो सफिशिएंट है, हमें ऐसा लगता है। तो ये है स्कोप पैराग्राफ। स्कोप मतलब ऑडिटर बता रहा है कि उसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, और डिस्क्लेमर भी दे रहा है कि भाई ये मैंने नहीं किया, 100% चेकिंग मैंने नहीं करी, मैंने तो टेस्ट चेकिंग करी है, मैंने तो सैंपलिंग करी है, 100% चेकिंग मैंने आपको बताया इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है सर, तो ये था हमारा स्कोप पैराग्राफ। ठीक है, अब आ गया हमारी रिपोर्ट का भाई क्रक्स, द ओपिनियन पैराग्राफ। ये है हीरो हमारी रिपोर्ट का, और जब भी कोई आउटसाइडर किसी भी ऑडिट रिपोर्ट को देखता है सबसे पहली चीज जो वो ऑडिट रिपोर्ट में ढूंढता है वो है ये वाला पैराग्राफ। उसकी सीधा नजर इस वाले पैराग्राफ पे जाती है। आओ देखते हैं पैराग्राफ क्या कहता है। द ओपिनियन पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट शुड स्टेट दैट इन द ऑडिटर्स ओपिनियन as to whether financial statements give true and fair view in accordance with the financial reporting framework and comply with the statutory requirement। बड़ी सीधी सिंपल सी बात, भाई ये बता दो कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस कंट्री में है, मैंने आपको बताया था हर कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने का तरीका अलग, हर कंपनी का अकाउंटिंग करने का तरीका अलग, हर कंपनी का टैक्सेशन पॉलिसी अलग। तो कॉमर्स जो होता है वो इस बात का ही एविडेंस होता है कि हर कंपनी में, हर परिस्थिति में, हर परिवेश में, हर इकोनॉमी में आपके पॉलिसीज चेंज हो जाएंगे, प्रोसीजर चेंज हो जाएंगे। इस पैराग्राफ में हमको क्या कहना है कि जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग मतलब ऑडिट रिपोर्ट बनाने का फ्रेमवर्क या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क कहते हैं लॉ को, जो लॉ गढ़ा हुआ है रिपोर्टिंग के आसपास, जो फ्रेमवर्क इंडिया में एप्लीकेबल है, ये ऑडिट रिपोर्ट उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही बनी है। ये है आपका ओपिनियन विच इज ट्रू एंड फेयर व्यू, which is according to you the framework, जो statutory requirement है, जो लॉ कह रहा है, कंपनी ने उसका पालन किया है, और जो रेवेन्यू है, हाँ भाई उसमें रेवेन्यू में एक्चुअल
ही फिगर लिखी है, कोई अनाप शनाप फिगर, कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं लिखी। जो एक्सपेंसेस हैं पीएनएल अकाउंट में उसमें सही फिगर लिखी है, जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें सही फिगर लिखी है, लायबिलिटी सही फिगर से रिकॉग्नाइज्ड है। ये है आपका व्यू। और कोई भी पर्सन जब भी एक ऑडिट रिपोर्ट को देखता है सबसे पहले इसी वाले पैराग्राफ पे चलता है। आओ ये वाला पैराग्राफ प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बनता है वो दिखाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये पैराग्राफ बनता है ऐसे, लिख लो जरा, ओपिनियन पैराग्राफ। बड़ा ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है ऑडिटर्स रिपोर्ट का। इन आर ओपिनियन, बता दो जरा ये आर कौन है भाई? ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस केस में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक है चतुर्वेदी शाह एंड कंपनी, एक है डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स। तो इन दोनों का ओपिनियन है, एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, हमारे ओपिनियन में और जो इंफॉर्मेशन हमें मिली और जो एक्सप्लेनेशन हमें मैनेजमेंट से मिला, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे द स्टेटमेंट presented in accordance with requirement of regulation 52 of SEBI, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए ऑडिट हो रहा है, प्रेजेंटेशन जो हुई है वो उसके अनुसार हुई है, एंड सेबी सर्कुलर के अकॉर्डिंग अनुसार पूरी प्रेजेंटेशन हुई है, एंड गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द अफोरसेड इंड एस का पालन हुआ है। मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, भाई इंडिया में कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आजकल चल रहा है? इंड एस चल रहा है। इंड एस के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी होती है और उसका रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ऑडिटर कह रहा है भाई इंड एस का पालन हुआ है और अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्टेड हैं इंडिया में, उन सब का भी पालन हुआ है, ठीक तरह से पालन हुआ है। तो एक जो FRF बनता है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, दोस्तों वो इन्हीं चीजों से मिलकर बनता है। इंड एस से, अकाउंटिंग पॉलिसी से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से जो जनरली एक्सेप्टेड हैं, इन दोनों से मिलकर ही FRF बनता है। accepted in India of the net profit including the other comprehensive income and other financial information for the year ended 31st March 2018। तो ये था आपका ओपिनियन पैराग्राफ। आपको बताया दो चीजें, एक तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो देखना हमने ओपिनियन पैराग्राफ के भी दो टुकड़े कर दिए। देखो ये जो चीज है ये है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि भाई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, कंपनी क्या उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। और जो सेकंड पैराग्राफ बनाया ऑडिटर ने वो किस बेसिस पे बनाया, वो किस चीज के लिए बनाया, वो बनाया दोस्तों FRF के लिए। तो दो चीजें हैं जो हमने ओपिनियन पैराग्राफ में पढ़ी थी। आ जाओ जरा मेन नोट्स में। एक तो चीज पढ़ी थी दोस्तों स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू, दूसरा FRF के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ऑडिटर समझदार है, ऑडिटर ने क्या किया, दोनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग पैराग्राफ, सब पैराग्राफ्स बना दिए और दोनों पे अपना ओपिनियन दे दिया। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी बता दिया और जिस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अलावा जिस FRF के बेसिस पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुए हैं वो भी बता दिया, दोनों को परफेक्टली बता दिया। अब देखना एक और चीज बताई, वो क्या बताई, द स्टेटमेंट इंक्लूड्स रिजल्ट्स फॉर 6 months एंडेड 31st March 18 एंड 31st March 17। तो हमेशा याद रखना ऑडिट रिपोर्ट जब बनती है तो उसमें पिछले साल की फिगर्स भी कंपेरेबल्स की तरह नजर आती हैं। दो कॉलम बनते हैं अमाउंट के, हमेशा पिछले साल की फिगर्स भी नजर आएगी, करंट ईयर की फिगर भी नजर आएगी, हमेशा ऐसा होता है। बीइंग बैलेंसिंग फिगर्स बिटवीन ऑडिटेड फिगर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल फाइनेंशियल ईयर्स एंड पब्लिश्ड ईयर टू डेट फिगर्स अप टू फर्स्ट 6 months ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर व्हिच आर सब्जेक्टेड टू लिमिटेड रिव्यू बाय अस। अब मैं आपको डिटेल में नहीं ब्रीफ में बताता हूं ये वाला सेक्शन क्या, ये वाला सेक्शन क्या कह रहा है ऑडिट रिपोर्ट का। दोस्तों ये सेक्शन कह रहा है कि क्योंकि आधे साल के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेबी को रिक्वायर्ड थे तो हमने उन आधे साल के स्टेटमेंट्स को पूरे साल के स्टेटमेंट्स को प्रोरेटा करके बनाया है। तो भाई पूरे साल के स्टेटमेंट्स तो हर कंपनी बनाती है, उसको तो जरूरी है, बट ये स्पेशल अकाउंट्स होंगे जरूर जो सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बने हैं। तो इसमें कहा गया है कि पूरे साल के स्टेटमेंट्स को हमने प्रोरेटा बेसिस पे बैलेंस करके हाफ ईयर के स्टेटमेंट्स बनाए हैं। और जो प्रीवियस ईयर की फिगर्स हैं, अब देखना ध्यान से, जो प्रीवियस ईयर की फिगर्स हैं उनका लिमिटेड रिव्यू हुआ है, उनका पूरा ऑडिट नहीं हुआ, क्योंकि पिछले साल की फिगर्स जरूर पिछले ऑडिटर ने बनाई होगी, इसीलिए पिछले ऑडिटर की रिपोर्ट पे वो लोग रिलाई कर रहे हैं और कह रहे हैं लिमिटेड, थोड़ा बहुत रिव्यू हमने कर लिया है बट एब्सोल्यूट रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग उसके लिए नहीं दे रहे। तो ये है एक और पैराग्राफ जो स्पेशल पैराग्राफ है, जो अगर जरूरत है तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। ठीक है सर। अब आ जाओ वापस
आगे क्या है, डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्या डेट रखें ऑडिट रिपोर्ट की। द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी डेट ऑन विच द ऑडिटर साइंस द रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। जिस दिन आपने साइन किया अपनी रिपोर्ट को और अपना ओपिनियन दिया, वो वाली डेट को हम ऑडिट रिपोर्ट की डेट मानेंगे। फॉलोइंग थिंग्स शुड बी नोटेड अबाउट द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड बी डेटेड ऑन विच ऑडिट हैज बीन कंप्लीटेड। तो जिस दिन ऑडिट कंप्लीट हुआ है उस दिन की डेट होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट की डेट। should not be earlier than date on which financial statements are signed by management। तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दोस्तों साइन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट पे आप साइन करोगे। आपके साइन, ऑडिटर के साइन दो जगह होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट पे भी होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी होते हैं। तो मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करके देगा। ऑडिट रिपोर्ट हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से बाद की ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है सर। एनी इवेंट अकरिंग आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा जी, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी आपने और अगले दिन ही कुछ ऐसी घटना हो गई जो आपको पता लगी, इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। आपको कोई लेना देना नहीं है। एक बार आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उस दिन का तक, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन करी उस दिन तक के आपने सारे के सारे फैक्टर्स एक्यूमुलेट करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिए, बस आपकी वहां पर लायबिलिटी हो गई खत्म। उसके बाद कुछ भी होता रहे, कंपनी में आग लगे, कंपनी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपका कोई उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। आओ देखते हैं हमारी रिपोर्ट में डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है। दोस्तों हमारी रिपोर्ट में डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है 27 अप्रैल 2018। और 27 अप्रैल 2018 की अगर ये डेट है तो ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 26 के हो सकते हैं, 25 के हो सकते हैं, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे। इससे पहले की डेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिग्नेचर होगा मैनेजमेंट का, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा बाद में सिग्नेचर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले सिग्नेचर होता है मैनेजमेंट का। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक लाइन मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, इट कैन बी ऑन द सेम डेट दो। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ऑडिट रिपोर्ट वाली, ये 27 को साइंड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी 27 को हो सकते हैं। हाँ, पहले नहीं हो सकते, बाद नहीं हो सकते, 28 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकते, लेकिन पहले के या उसी दिन के तो हो सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट होगी साइनिंग की, वो क्या होगी, वो 27 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। बस वो 28 और 29 नहीं हो सकते। आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो लॉजिकल बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले साइन करेगा मैनेजमेंट, तभी तो उसका ऑडिट रिपोर्ट साइन होगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में साइन हो रहे हैं, और मैनेजमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट तो क्योंकि साइन हो गई, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज कर दिया आपके पीछे से, जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करके चले गए। तो ऑडिट रिपोर्ट हमेशा हमेशा बाद में साइन होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा हमेशा पहले साइन होंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, प्लेस ऑफ सिग्नेचर। आपको ऑडिट रिपोर्ट में प्लेस ऑफ सिग्नेचर भी मेंशन करना होता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सिग्नेचर बताता है कि किस स्पेसिफिक लोकेशन पे ऑडिटर था जब उसने ये ऑडिट रिपोर्ट साइन करी। अब देखो दोस्तों, घपला क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ऑडिटर ना लेट ऑडिट रिपोर्ट कई बार साइन करते हैं और बैक डेट में साइन कर देते हैं, पीछे के डेट में साइन कर देते हैं। तो वो साइन करते हैं 29 अप्रैल 2019, और वो जिस दिन साइन कर रहे होते हैं उस दिन की डेट होती है 29 जून 2019। 2 महीने बाद साइन कर रहे होते हैं, और पता लगता है कई बार बाद में कि जो 29 अप्रैल को उसने साइन किया था, 29 अप्रैल में तो वो दिल्ली में था ही नहीं जहां पर डेट लिखा है, जहां पर प्लेस लिखा है। वो बंदा ऑडिटर तो मुंबई में था 29 अप्रैल को, वो तो क्योंकि 29 जून को उसने साइन किया, इसीलिए उसने डेट और प्लेस डाल दिया दिल्ली। दिल्ली में वो था ही नहीं। तो ये मिसमैच को दूर करने के लिए, पकड़ने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, प्लेस भी लिखवाया जाता है और डेट भी लिखवाई जाती है। दोनों चीजें केयरफुली आपको लिखनी है। तो देखो इस केस में भी प्लेस लिखा है मुंबई, मुंबई में ये वाली ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई है एक्चुअली। तो अभिजीत ए डामले पार्टनर हैं डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल के, जिन्होंने साइन किया है। मेंबरशिप नंबर दोस्तों, ये सीए का मेंबरशिप नंबर होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देते हैं। ये मेंबरशिप भी कोट करना जरूरी होता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में।
फिर ये देखो दोनों ऑडिटर्स ने अपना अपना नाम लिखा है और अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। मैंने आपको बताया था ऑडिट फर्म या तो पार्टनरशिप फर्म होगी या फिर एलएलपी होगी। तो देखो चतुर्वेदी एंड शाह पार्टनरशिप फर्म है और एलएलपी है डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स। मैंने आपको बताया था सारे बिग फोर ने अपनी एलएलपी बना ली है। आज की डेट में सारे बिग फोर एलएलपी फॉर्म में ही काम कर रहे हैं। फिर लास्ट चीज है ऑडिटर सिग्नेचर। ये तो मेन चीज है दोस्तों। ऑडिटर को साइन करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट को इन हिज पर्सनल नेम। ये जरा हाईलाइट करना, इन हिज पर्सनल नेम। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं निखिल गुप्ता हूं तो मैं अपने पर्सनल नेम में तो साइन करूंगा। मैं कोई आशुतोष पांडे के नाम पे साइन थोड़ी करूंगा या मैं संतोष कुमार सर के नाम पे साइन थोड़ी करूंगा। मैं तो निखिल गुप्ता हूं, मैं तो ऑब्वियसली अपने नाम पे ही साइन करूंगा ना। तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, इन हिज पर्सनल नेम। दोस्तों ये है एक बहुत बड़े लूप होल को कर्ब करने का तरीका। तो देखो जो बंदा ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस बंदे की होगी जिसने ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया है नेचुरली। तो अगर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूर करना है तो अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ए ऑडिट करके आया, ए ने कहा भाई बी तू प्लीज ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दे, बी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, भाई सी तू ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दे, सी ने कहा नहीं 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 मैं भी नहीं करूंगा, वापस आ गई बात ए पे, ए कह रहा है नहीं नहीं मैं भी नहीं करूंगा। सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे देंगे। और होना क्या शुरू हो गया था इस वाले चक्कर में, कई बार ऑडिटर्स अपने पर्सनल नाम से नहीं फर्म के नाम से साइन करते थे और फर्म की सील को अटैच कर देते थे कि हमने भाई ए ने ऑडिट नहीं किया, बी ने ऑडिट नहीं किया, सी ने ऑडिट नहीं किया, ये ऑडिट तो किया है ए बी सी एंड एसोसिएट्स ने, तो उसको उसके नाम से साइन कर देते थे और उसकी सील लगा देते थे। दिस इज रॉन्ग। ऑडिट रिपोर्ट हमेशा किसी एक पर्सनल नेम में साइन होगी, सिर्फ ऑडिट फर्म के नाम से साइन नहीं हो सकती। आगे पढ़ते हैं। वेयर अ फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, माना फर्म अपॉइंट हुई ऑडिटर, कोई बात नहीं, द रिपोर्ट शुड बी साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर एंड इन द नेम ऑफ द ऑडिट फर्म। दोनों के नाम पे साइन होना चाहिए, ऑडिट फर्म का नाम भी होना चाहिए और पर्सन का नेम भी होना चाहिए, किसी ना किसी इंसान का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि जो फर्म होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कल को अगर घपला हुआ तो हम किसको अप्रोच करेंगे, तो पर्सन का नाम होना, किसी एक ऑडिटर का नाम होना बहुत बहुत जरूरी है ऑडिट रिपोर्ट में। The partner or proprietor signing the report should mention his ICAI membership number also। तो मैंने आपको दिखाया था दोनों पार्टनर्स ने अपना ICAI का मेंबरशिप नंबर भी लिखा है और दोनों ने जो साइन करे हैं वो अपने नाम पे साइन करे हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता था जब ये वाला प्रोविजन नहीं था। तो यहां पर जो आपको साइन दिख रहा है ना, वो साइन आपको दिखता डिलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स के नाम का, और एक सील होती इसकी तरफ, डिलॉयट की जो सील होती है वो सील होती, और उस सील में जो नाम लिखा होता है वो नाम लिखा होता। ये गलत तरीका है, सील आप नहीं लगा सकते और डिलॉयट के नाम पे साइन नहीं कर सकते। आपको किसके नाम पे साइन करना है, आपको तो पार्टनर जो एक्चुअल पार्टनर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, पार्टनर का नाम होना चाहिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस पार्टनर की है अगर इस ऑडिट में कुछ भी गड़बड़ दिखा तो। सो दिस इज द सिग्नेचर। सो दोस्तों ये हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स जो ऑडिट रिपोर्ट में होते हैं, और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया कि एक ऑडिट रिपोर्ट में कितने टाइप के एलिमेंट्स प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं और उनमें वर्डिंग्स क्या क्या होती हैं। ठीक है सर।